बच्चों, good morning. Myself, Dayalchan Pathak. I welcome you all to my channel Physics Made Easy by DCB. Now this is my fourth lecture for class 11th. So before that, in last lecture we have discussed about units, measurement and type of units and how we will convert it from one form to another. Now we come to know that there are three types of units. Basic units, these are called fundamental units, then drive unit, then supplement. Fundamental units are basic units. These units are decided by General Conference of Weights and Measurement Organization. They are internationally selected units. Then rest other units are derived by these 7 fundamental units called drive unit. 2 units are there which are neither be fundamental nor drive. These 2 units are called supplementary units, radian and steradian. So that means basically we come to know that we have 7 type of units which are fixed. 7 ऐसे यूनिट्स हैं जो कि फिक्स हैं, जो कि डिसाइडेड है इंटरनेशनली तौर पे, जिसे हम एसआई सिस्टम ऑफ ली सिस्टम ऑफ द यूनिट बोलते हैं. ली इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिट में कितने यूनिट्स हैं? 7 है. सो दैट मीन्स वी हैव 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी which have fundamental units which are fixed. Now today we are going to discuss another topic, that is dimensional analysis. It is very important topic for class 11th exam. Dimensional analysis, and in competitive exam also you will get the question from this dimensional analysis. Now what is dimensional analysis? Now see how many fundamental units we have. Fundamental physical quantity, and fundamental units, their unit, and then last dimensional formula. Last one is, this is dimensional formula. In short form you can write it T dot F, dimensional formula. Now what is dimensional formula? We will discuss in this chapter. Now how many fundamental physical quantity we have? 7. Number first is length, number second is mass, number third time, number fourth temperature, number fifth current, number sixth amount of substance, and number 7 intensity. You can say it luminance of intensity. Now these are the 7 fundamental physical quantities. ये बेसिक क्वांटिटीज हैं which are accepted by the General Conference and Weight and Organization. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था. These are the 7. Now ब्लॉक बना लेते हैं ताकि किसका कौन सा है करेक्ट हमको दिखाई दे. These are the 7 fundamental basic units are there. Now their units. Unit of length is, we know about that. What is the unit of length? Unit of length is meter. Mass kg, time second, temperature Kelvin, and current unit is ampere. Amount of substance unit is mole, and luminance of intensity is candela. Yes or no? These are the 7 fundamental units: meter, kg, second, Kelvin, ampere, mole, and candela. What is 1 meter? Meter क्या चीज है? Meter is the distance traveled by light in vacuum 1/299792458 सेकेंड. So means light द्वारा वैक्यूम में 1/2999792 and 458 सेकेंड में जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है, दैट इज कॉल्ड 1 मीटर. 1 kg किसे बोलते हैं? kg is the unit of mass. What is kg? kg is the mass of a cylinder whose height is 39 mm and diameter is 39 mm made up of platinum iridium alloy kept in the France, same organization. So these are the fixed ones. These are called fundamental. Now their dimensional formula. What is dimensional formula? These fundamental units are represented by some symbol inside square bracket. These fundamental units are represented by some symbol inside a square bracket, that is called
dimensional formula. So dimensional formula is represented inside the square bracket. Inside the square bracket. Now what is the dimensional formula of length? Their first word, length L. So here we will write capital L. Dimensional formula of mass, capital M. Dimensional formula of time is capital T. These are the dimensional formula. This is the dimensional formula of length. This is the dimensional formula of mass. This is the dimensional formula of time. Here the first word. Now after these three, when you will write the dimensional formula, now what is the dimensional formula of temperature? Temperature का T नहीं होगा. अब यहाँ से नोट करेंगे क्या होगा उनके यूनिट में, केल्विन के. डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एम्पियर, करंट का एम्पियर है यूनिट, एम्पियर का पहला वर्ड ए. देन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोल, तो इसको लिख लेते हैं MOL. दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी, कैंडिला, कैंडिला में लिखते हैं CD. These are the dimensional formula of 7 physical quantities. Now if you will see the drive unit. Drive units are made up of these fundamental units. सारे के सारे drive units किसके बने होते हैं, मैंने सिखाया था इससे पहले लेक्चर में. All fundamental units are made up of these. All drive units are made up of these fundamental units. इन्हीं fundamental unit के सारे इन्हीं के बने होते हैं. अब इनको अगर इस सिंबल से दिखाते हैं तो ड्राइव यूनिट्स को भी इन सिंबल में कन्वर्ट किया जा सकता है. That is called dimensional formula. So what is dimensional formula? Dimensional formula is to represent any drive unit in the term of fundamental symbols inside the square bracket. To represent any unit in the term of fundamental units inside the square bracket. In the symbol of fundamental units inside the square bracket, that is called their dimensional formula. You see the table. This is the table for dimensional formula. This is the table for dimensional formula. Now where we use this formula, let's see. अब चलते हैं क्वेश्चन में. किस तरह का क्वेश्चन आता है. एप्लीकेशन आर दे. डायमेंशनल फॉर्मूला के आपके पास केवल एप्लीकेशन है. जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आता है, आपसे क्वेश्चन पूछा, फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स. फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स. फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपने फाइंड आउट करना. मींस रिप्रेजेंट द फोर्स इन द टर्म ऑफ सिंबल्स इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट. ये मतलब हुआ डायमेंशनल फॉर्मूला का मतलब हुआ कि आपने फोर्स को इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट LMT के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट से. उसके लिए आप क्या याद रखेंगे, ये बात आप याद रखेंगे. पहले भी मैंने कहा वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी. ये आप ध्यान रखेंगे, वेलोसिटी अपॉन टाइम, एंड वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. दिस टर्म, ये बातें आपको याद होनी चाहिए. सब आप फिंगर टिप्स में याद रख लीजिए, आपको बहुत आसान हो जाएगा डायमेंशनल. नाउ आपने किसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है. टास्क इज टू फाइंड आउट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स. चलिए कैसे निकालते देखिए. आपको इसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए. फोर्स, व्हाट इज फोर्स, एवरीबॉडी नो. फोर्स F इक्वल टू ma. फोर्स F इक्वल टू ma. दिस इज न्यूटन्स सेकंड लॉ. F इक्वल टू ma. एवरीबॉडी नो, इन 9th क्लास यू हैव दिस. बट नाउ कन्वर्ट इट. m इज मास. मास इज फंडामेंटल यूनिट. अब इनमें से चेक करते हैं कौन फंडामेंटल है. मास फंडामेंटल. एंड a मींस एक्सेलरेशन. a मींस एक्सेलरेशन. बट एक्सेलरेशन इज नॉट इन दैट लिस्ट. फंडामेंटल के लिस्ट में एक्सेलरेशन नहीं है. इसका मतलब एक्सेलरेशन फंडामेंटल नहीं है. जो फंडामेंटल नहीं है उसे तोड़ना होगा आपको. तोड़ने के लिए मैंने यहां टेबल लिखा. एक्सेलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम. नाउ मास इज फंडामेंटल. जो फंडामेंटल है उसे छोड़ दीजिए. वेलोसिटी इज नॉट फंडामेंटल. वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट. वेलोसिटी को लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू, ऑलरेडी ये टाइम था यहां पर, टाइम. नाउ देखिए, मास इज फंडामेंटल, displacement, length is fundamental, time is also fundamental. Now these all are converted into fundamental. Now write their symbol. Mass symbol is inside the square bracket m. Displacement means length. Length symbol is L. Upon time T. Now you write in a single square bracket. M 1, L also 1. T डाउनवर्ड इट इज टी स्क्वायर. ऊपर चला गया तो कितना होगा, टी की पावर -2. 1/t स्क्वायर था ना, ऊपर गया तो टी की पावर -2 हो जाएगा इनसाइड द स्क्वायर. दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ
whose dimensional formula is this? This is the dimensional formula of force. So to represent any physical quantity in the term of MLT inside the square bracket is called its a dimensional formula. तो किसी का भी आप dimensional formula निकाल सकते हैं. क्या ध्यान रखना आपने? You break that formula till you will not get all fundamental. जब तक आपको ये नहीं मिल जाए कि सबके सब फंडामेंटल हो गए, सबके सब किसके टर्म में टूट गए, फंडामेंटल, तब तक उसे आप तोड़ते रहेंगे. क्लियर? चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा कैसे करना है. कोई भी कर सकते हैं आप. नाउ सपोज वी वांट टू फाइंड आउट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क. मान लीजिए मुझे पूछा वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करना. एवरीबॉडी नो हाउ विल डू. वी नो, आपको पता होना चाहिए वर्क क्या होता है. वर्क होता है, अभी मैंने बोला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. नाउ डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ एंड लेंथ इज फंडामेंटल. डिस्प्लेसमेंट लेंथ होती है, डिस्प्लेसमेंट को तो लेंथ ही कहते हैं. लेंथ इज फंडामेंटल बट फोर्स इज नॉट फंडामेंटल. फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स. तो ये हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट. मास इज फंडामेंटल, लीव इट नाउ. Acceleration is not fundamental. Acceleration equal to velocity upon time into displacement is fundamental. Yes. Now mass is fundamental, no problem. Velocity is not fundamental. Velocity equal to displacement upon time. तो टाइम का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा. एक टाइम ऑलरेडी है, वेलोसिटी से एक टाइम आएगा इनटू डिस्प्लेसमेंट. यस. तो क्या होगा, नाउ डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ. लेंथ फंडामेंटल, लेंथ फंडामेंटल, टाइम इज फंडामेंटल, मास इज फंडामेंटल. तो आप इसके सिंबल लिखिए. मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m, लेंथ का डिस्प्लेसमेंट लेंथ l, इस लेंथ के लिए भी l, टाइम का t स्क्वायर. ऊपर ले आइए, एक साथ लिख दीजिए. m की पावर 1, l बेस से मैं तो पावर ऐड होंगे 1 1 2 t की पावर -2. दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ व्हाट इज, whose dimensional formula is this? This is the dimensional formula of work. So we can find out the dimensional formula of any physical quantity. दो चीजें पता होनी चाहिए. एक आपको उसका वर्क डन, उसका मतलब फॉर्मूला आपको पता हो. बिना फॉर्मूले के आप नहीं निकाल सकते. मेमोराइज नहीं करना है इनको कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला इतना. ये निकालने का तरीका जो मैं आपको बता रहा हूं ऐसे निकालना. इसके लिए आपको फॉर्मूले पता होने. जैसे जैसे आपको फॉर्मूले पता चलते जाएंगे आप किसी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल रहे हैं. तो ये आपको याद होना चाहिए. चलिए अब बात करते हैं किसी भी. सुबह आपसे बोला फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर. आपसे बोला फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर. नाउ व्हाट इज द प्रेशर. प्रेशर क्या होता है, पहले प्रेशर का फॉर्मूला पता होना चाहिए. प्रेशर P इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया. एवरीबॉडी नो फोर्स अपॉन एरिया इज कॉल्ड प्रेशर. फोर्स इज नॉट वेक्टर. फोर्स को क्या बोलते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन. मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया. एरिया इज लेंथ इनटू विड्थ. फॉर्मूले पता होने चाहिए. लेंथ इनटू विड्थ. मास इज फंडामेंटल. नाउ मास इज फंडामेंटल क्वांटिटी. इज इट क्लियर? एक्सेलरेशन इज नॉट फंडामेंटल. एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम. नाउ लेंथ इज फंडामेंटल बिकॉज लेंथ यूनिट इज मीटर. विड्थ इज आल्सो फंडामेंटल बिकॉज विड्थ यूनिट इज आल्सो मीटर एंड मीटर इज फंडामेंटल. लेंथ भी मीटर में नापी जाती है, विड्थ भी मीटर में नापी जाती है. तो दोनों मीटर में नापी जाती है. तो मीटर कैसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल. तो ये दोनों फंडामेंटल हो गई. नाउ वेलोसिटी इज नॉट फंडामेंटल. वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. नीचे टाइम रहा इनटू साथ में क्या रहा, लेंथ इनटू विड्थ. नाउ सी मास फंडामेंटल, डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ, लेंथ इज फंडामेंटल, विड्थ लेंथ फंडामेंटल, विड्थ फंडामेंटल, टाइम फंडामेंटल, ऑल आर फंडामेंटल. नाउ राइट दिस सिंबल m फॉर डिस्प्लेसमेंट l अपॉन टाइम t, नेक्स्ट टाइम t फॉर लेंथ l फॉर विड्थ l. तो कैंसिल हो गया. क्या m की पावर 1, t की पावर 2, ऊपर गया तो t की पावर -2, l की पावर -1. तो आगे लिखेंगे इसे m1 l -1 t -2. दिस इज द mlt के टर्म में ही होना चाहिए. पहले l m फिर l फिर t. दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, whose dimensional formula is this? This is the dimensional formula of pressure. So you can find out the dimensional formula of any physical quantity. इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ मेमोराइज मत करिए इनसे. इसे सीखना है. जैसा मैंने आपको सिखाया है ब्रेक करना सीखे. तब तक ब्रेक कीजिए जब तक वो कहाँ न पहुंच जाए. इट्स अ बेसिक
जब तक वो कहां तक न टूट जाए, फंडामेंटल यूनिट्स ना। अब कहां डायमेंशनल एनालिसिस, नाउ कहां इसका यूज होता है। देखिए डायमेंशन फॉर्मूला का यूज किस किस चीज में। बाय डायमेंशनल फॉर्मूला वी कैन फाइंड एनी फिजिकल क्वांटिटी, वी कैन फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। क्लियर। नाउ नंबर सेकंड, देयर आर 4 टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बाय डायमेंशनल फॉर्मूला। बाय डायमेंशनल फॉर्मूला 4 टाइप ऑफ physical quantity. There are 4 type of physical quantity by dimensional formula. Number first, dimensional constant. Dimensional constant. What is the meaning? Meaning those physical quantity which are constant. Those constant whose value remain fixed, means those physical quantities whose value remain constant but they have dimensions. Those physical quantity which value will remain constant, जिसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, बट उसका क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला, उन्हें बोलते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल स्पीड ऑफ लाइट, एवरीबॉडी नो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इट्स वैल्यू इज, दिस वैल्यू इज कांस्टेंट बट इट हैव यूनिट, सो इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला। मीटर के लिए L, सेकंड के लिए T, तो क्या हो जाएगा, M तो है नहीं, M0, L1, T-1, जो नहीं होगा उस पर 0 लगा देंगे। सो दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इज ए डायमेंशनल कांस्टेंट। स्पीड ऑफ लाइट इज डायमेंशनल कांस्टेंट बिकॉज इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट बट इट हैव डायमेंशनल फॉर्मूला। दोज फिजिकल क्वांटिटी विच वैल्यू विल रिमेन कांस्टेंट बट इट हैव डायमेंशनल फॉर्मूला, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा लेकिन वैल्यू कांस्टेंट होगी, उन्हें हम क्या कहेंगे, डायमेंशनल कांस्टेंट बोलेंगे। बहुत सारे हैं, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज ए डायमेंशनल कांस्टेंट। बहुत सारे ऐसे कांस्टेंट हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होगी लेकिन उनके पास अपना डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, दैट इज कॉल्ड डायमेंशनल कांस्टेंट। नंबर सेकंड आर डायमेंशनल वेरिएबल। Now what are dimensional variable? Those physical quantity which have dimensions but they are variable, मतलब उनकी वैल्यू फिक्स नहीं है और उनका डायमेंशंस भी है, मींस उनके पास डायमेंशंस भी है और वैल्यू भी उनकी फिक्स नहीं है। ये सब चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फोर्स कैसा है, फोर्स वेरिएबल है, फोर्स इक्वल टू ma होता है, बदलता रहता है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी होता है, अभी मैंने निकाला फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला था। सो ऑल द फिजिकल क्वांटिटी विच आर वेरिएबल, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होगी, जैसे इसकी वैल्यू फिक्स थी, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होगी, फिक्स भी नहीं होगी और साथ में इनका अपना डायमेंशंस भी होगा, उन्हें बोलेंगे डायमेंशनल वेरिएबल। नंबर थर्ड होता है डायमेंशनल लेस कांस्टेंट। ये क्या होते हैं, ये वो कांस्टेंट होते हैं जिनकी वैल्यू तो कांस्टेंट होती है बट दे हैव नो डायमेंशंस। फॉर एग्जांपल जैसे आप जानते हैं √2 क्या होता है 1.414 है ना। अब √2 1.414 है, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। देखिए ये वैल्यू है, इसका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला आपको नहीं मिलेगा क्योंकि इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, इट हैव नो डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। ऐसी कई सारी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जो कि कांस्टेंट होंगी लेकिन उनका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जैसे 10th में पढ़ा होगा आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नो यूनिट, 1.33 वाटर का होता है, फिक्स वैल्यू है बट इसका कोई यूनिट नहीं है तो इसका कोई डायमेंशंस भी नहीं होगा। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी कोई यूनिट नहीं होगा उसका कोई डायमेंशंस भी नहीं होगा। तो ऐसी क्वांटिटियां जिनकी वैल्यू तो फिक्स हो, वैल्यू कांस्टेंट हो और साथ में उनकी यूनिट भी नहीं, डायमेंशन नहीं निकल सकते हो, उन्हें बोलते हैं डायमेंशनल लेस। नंबर 4 होता है डायमेंशनल लेस वेरिएबल। डायमेंशनल लेस वेरिएबल कौन से वेरिएबल, डायमेंशनल लेस वेरिएबल मतलब एक ऐसे वेरिएबल जो ऐसी चीजें जो वेरिएबल हो जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं हो और साथ में नहीं उनका डायमेंशंस हो, डायमेंशंस भी नहीं होगा और वैल्यू भी फिक्स नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल tan थीटा, sin थीटा, आपको पता है इनकी वैल्यू 30 डिग्री पर अलग होती है, 45 पर अलग होती है, 60 पर अलग होती है, 90 पर अलग होती है। तो ये क्या है, इनका कोई डायमेंशंस नहीं है, दे हैव नो
डायमेंशन, इनका कोई भी डायमेंशन नहीं है, एंगल, स्ट्रेन, स्ट्रेस, स्ट्रेन, तो ये वेरिएबल भी नहीं, ये वेरिएबल होते हैं और साथ में इनका कोई डायमेंशन नहीं होता, उन्हें बोलते हैं डायमेंशनल लेस वेरिएबल। जो कांस्टेंट होते हैं लेकिन डायमेंशनल नहीं होता, डायमेंशनल लेस कांस्टेंट। जो वेरिएबल होते हैं और डायमेंशन होता है उन्हें बोलते हैं डायमेंशनल वेरिएबल। कांस्टेंट होते हैं फिर डायमेंशन होता है उन्हें बोलते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। सो दीज आर द 4 टाइप ऑफ क्वांटिटीज। 4 तरह की क्वांटिटी आपके पास हो सकते हैं। ना अब बात करते हैं क्या यूज है डायमेंशनल फॉर्मूले का, यूज कहाँ कहाँ। इसमें बोलते हैं, हेडिंग पढ़ेंगे हम, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन, क्या क्या एप्लीकेशन है, कहां कहां इसका यूज किया जा सकता है। नंबर फर्स्ट यूज, वी कैन राइट एनी फिजिकल क्वांटिटी इन द टर्म ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इन द टर्म ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं। जैसे अभी मैंने लिखा, वर्क को लिखा, फोर्स को लिखा, आप ऐसे प्रेशर लिख सकते हैं, मोमेंटम लिख सकते हैं, किसी को भी लिख सकते हैं। आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए और जो मैंने ब्रेक करने के लिए टेबल दी वो आपको पता होनी चाहिए, सो यू कैन इजीली। नंबर सेकंड, वी कैन कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू another by डायमेंशनल फॉर्मूला। देखिए, नंबर सेकंड एप्लीकेशन है कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशनल फॉर्मूले से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ले जा सकते हैं। एक सिस्टम से कहां कन्वर्ट कर सकते हैं, सिस्टम मतलब जैसे मैंने आपको पढ़ाया सिस्टम क्या है, एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड सिस्टम था, एमकेएस सिस्टम था, सीजीएस सिस्टम था, एसआई सिस्टम था। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम डायमेंशनल मेथड का यूज करके एक सिस्टम से, जैसे फुट से मीटर में, मीटर से सेंटीमीटर, तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे भी कर सकते हैं, वैल्यू आपको पता भी होगा कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर होता है। ये जनरल मेथड है, पर डायमेंशनल मेथड से भी ऐसा किया जा सकता है कि अननोन चीज को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं देखिए। फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे यार ये तो ये सुना ही नहीं है। देखिए, कन्वर्ट करना है बाय डायमेंशनल मेथड ही आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। लिखा होता है क्वेश्चन में, बाय डायमेंशनल मेथड कन्वर्ट 1 जूल। जूल किसकी यूनिट है, जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क। किसकी यूनिट है, वर्क। जो आपको नोन है ये जूल कौन से सिस्टम में है, एमकेएस में होती है। भाई हम एसआई और एमकेएस सिस्टम ही तो पढ़ते हैं। जो जूल यूनिट है वो कौन से सिस्टम की यूनिट है, एमकेएस की है। तो जो अर्ग आपको दिख रही है ये भी किसकी यूनिट है, ये भी यूनिट है वर्क की, लेकिन कौन से सिस्टम में होती है, सीजीएस। फ्रांस की जो सिस्टम है सीजीएस, उसमें सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम में जो वर्क की यूनिट है वो है अर्ग, और एमकेएस सिस्टम मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम में जो वर्क की यूनिट है वो है जूल। तो हमने कन्वर्ट करना है 1 जूल को किस में, अर्ग में। क्या हमने बताना है कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं। चलिए कैसे किया जाता है देखिए। कन्वर्ट करना है 1 जूल इनटू अर्ग। जूल इन एमकेएस सिस्टम एंड अर्ग इज इन सीजीएस। नाउ वी नो फिजिकल क्वांटिटी, हम जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी जो है उसके पास हमेशा कितने चीजें होती है, 2। क्लियर, एक नंबर होता है, एक यूनिट होता है। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया। तो अगर हम फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वैल्यू विल रिमेन सेम। वैल्यू क्या बनी रहेगी, सेम बनी रहेगी। भाई उनका प्रोडक्ट अगर ये वर्क है तो वर्क तो रहेगा, पहले सिस्टम में N1 U1, दूसरे सिस्टम में N2 U2, इट विल रिमेन कांस्टेंट। नाउ मान लीजिए आपने N2 निकालना है, हियर जो N1 है, N1 U1 फॉर फर्स्ट सिस्टम, जो भी फर्स्ट सिस्टम आपको दिया होगा उसके लिए N1 U1, N2 U2 फॉर सेकंड सिस्टम, जो सेकंड सिस्टम आपको दिया है उसके लिए M2 U2। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। N2 अगर आपको निकालना तो क्या होगा, N1 U1 अपॉन U2। U1 क्या है, यूनिट है, ये भी क्या है, यूनिट है। क्लियर, दोनों यूनिट के फॉर्मूले हैं। सही है। चलिए अब कैसे कन्वर्ट करते हैं देखिए ध्यान से।
N2 इक्वल टू हो गया N1 कितना जूल दिया था 1 जूल। पहले सिस्टम में वैल्यू कितनी है, किसको चेंज करना था 1 जूल को करना था, तो N1 की जगह 1 हो गया, U1 की जगह जूल अपॉन U2 क्या है अर्ग है ना, जूल क्या है अर्ग है। अब ये किसकी यूनिट है, ये है वर्क की यूनिट। किसकी यूनिट है वर्क की। वर्क इक्वल टू क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तोड़िए इसको फंडामेंटल टर्म में, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्यों क्या आपका मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। मास फंडामेंटल, एक्सेलरेशन हो गया आपका वेलोसिटी अपॉन टाइम इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। मास वेलोसिटी हो गया आपकी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो टाइम का स्क्वायर हो जाएगा इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। मास क्या हो गया m, डिस्प्लेसमेंट के लिए l लेंथ है तो l स्क्वायर हो गया, t नीचे से गया -2। ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया किसका वर्क का। ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया वर्क का। अब वी नो एवरी फिजिकल क्वांटिटी इज कन्वर्टेड, वी कैन राइट एनी फिजिकल क्वांटिटी इन द टर्म ऑफ mlt, उसे तो डायमेंशन फॉर्मूला बोलते हैं। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इसे लिखें 1 जूल को भी MKS में हम लिख सकते हैं, पहले सिस्टम में है तो M1 L1 T1। आर्क को भी हम लिख सकते हैं M2 L2 T2 इसके टर्म में। मान लीजिए इनकी पावर कितनी है ABC, पावर हमें नहीं पता कितनी है, तो मान लीजिए इनकी पावर ABC है, तो क्या हो जाएगा N2 हो जाएगा 1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C। क्लियर। अब सर ये ABC क्या होगा, देखिए ABC क्या है, M की पावर A मानी हमने, L की पावर B, T की पावर C, ये है। देखिए M की पावर यहाँ पर जो है वो A है, A इक्वल टू 1, L की पावर जो है वो B है, B इक्वल टू 2, T की पावर C मानी है तो यहाँ C की हो गया -2, तो ABC ये है आपका। क्लियर है। तो ये आ गया फॉर्मूला, इसे कहते हैं जनरल फॉर्मूला, जिससे हमने इसे फाइंड आउट करना है। बस हो गया। अब आपको क्या करना है वैल्यू पुट करनी है। देखिए 1 M1 कौन से सिस्टम में MKS, जूल कौन से सिस्टम था MKS, और अर्ग कौन से सिस्टम का था CGS, अर्ग था CGS का। और MKS में मास को किस केस में नापते हैं kg, अपॉन CGS में ग्राम की पावर A इज 1। लेंथ किस में नापते हैं मीटर में, और इसमें नापते हैं सेंटीमीटर की पावर 2 B2 है। टाइम को नापते हैं सेकंड में, और दूसरे में भी नापते हैं सेकंड में की पावर। ये देखिए यहाँ भी सेकंड है यहाँ भी सेकंड है, तो दोनों सिस्टम जो भी दो सिस्टम दिए हैं उनमें। तो ABC आपको कहां से निकालना समझ आ गया, फॉर्मूले से, जिसकी वो यूनिट है वहां से आपको ABC निकाल लेना। अब सॉल्व कर लेंगे। N2 इक्वल टू 1, अब देखिए kg है ग्राम है, किसी एक को कन्वर्ट कर दीजिए ऊपर। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, अपॉन ग्राम हो जाएगा की पावर 1। मीटर सेंटीमीटर, मीटर को कन्वर्ट करते हैं 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर की पावर 2। ये तो कट गया, यहां गया 1 की पावर -2, 1 की पावर -2 हो गया, ये कट गया। कितना आ गया N2 आ गया 1000 इंटू 100 का स्क्वायर, 100 इंटू 100 इंटू 1, 1 की पावर -1 हो प्लस 1 हो एक ही रहेगी। कितना आ गया 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना आ गया N2 7। सो Q हो जाएगा N2 U2 के हिसाब से क्या हो गया 10 का 7 अर्ग। सो 1 जूल किसके इक्वल है 10 का 7 अर्ग के इक्वल है बाय डायमेंशनल फॉर्मूला। सो बाय डायमेंशनल फॉर्मूला वी कम टू नो दैट 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग। 1 जूल किसके इक्वल है 10 की पावर 7 अर्ग। दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। बाय डायमेंशनल फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट, वी कैन convert a value of from one system to another। तो इस डायमेंशनल फॉर्मूला से एक वैल्यू को कौन से सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट किया जा सकता है। चलिए एक क्वेश्चन और करता हूं मैं, मेन क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूं मैं, दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं लेकिन आपको समझना होगा कैसे कर रहे हैं। चलिए मान लो क्वेश्चन है कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, 1 न्यूटन इंटू डाइन। नाउ अब आपको परेशानी है भाई 1 न्यूटन
तो N1 हो गया 1 और U2 है N1 हो गया 1, U1 हो गया आपका न्यूटन, N2 हमें बताना है, U2 हमें कन्वर्ट करना है, यूनिट क्या है सेकेंड डाइन। फर्स्ट नंबर है 1, फर्स्ट यूनिट है न्यूटन, सेकेंड नंबर हमें बताना है कितना, हाउ मच डाइन करना है ना, हाउ मच डाइन, तो U2 होगा डाइन। चलिए क्या है फॉर्मूला, सीधे लिखेंगे वी नो N2 इक्वल टू होता है N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C। दिस इज द फॉर्मूला। यही तो आता है, अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आपको सीधे फॉर्मूला अगर याद रहता है सो यू विल राइट, अदरवाइज आप क्या करेंगे, N1 U1 इक्वल टू N2 U2, N1 U1 इक्वल टू N2 U2 करेंगे तो यही आ जाएगा। चलिए अब न्यूटन किसकी यूनिट है, न्यूटन है किसकी यूनिट, फोर्स की। फोर्स को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। आपने देखना है यूनिट किसकी है, ये यूनिट है फोर्स की, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, मास फंडामेंटल, एक्सेलरेशन हो गया वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी हो गई आपकी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये डायमेंशन फॉर्मूला आ गया m1L1t-2। तो m की पावर जो होती है वो a होती है, a हो गया, b हो गया l की पावर और c हो गया t की पावर। क्लियर, अभी मैंने बताया ना, यहाँ जो जिसकी ये यूनिट है उसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल देंगे उस फिजिकल क्वांटिटी का, तो m की पावर जो भी आएगी वो a, l की पावर जो भी आएगी वो b, t की पावर जो भी होगी वो c हो गई। चलिए आप शुरू करते हैं। चलिए N1 कितना है, N1 है 1, M1 ये कौन सा, आप शुरू करते हैं। N1 कितना है, N1 है आपका 1, M1 कौन से सिस्टम में है, MKS में, और डाइन होता है CGS में। न्यूटन है MKS में, CGS है डाइन में। MKS में मास किसमें है, मास होगा MKS में kg में, और M2 वाले में होता है ग्राम में, CGS में ग्राम में होता है क्योंकि सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम है, की पावर 1। L1 पहले सिस्टम मीटर से, दूसरा सेंटीमीटर, की पावर b इज ऑल्सो 1, पहले सिस्टम में सेकेंड, दूसरे में भी सेकेंड, की पावर -2। कन्वर्ट कर दीजिए, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम हो गया, अपॉन ग्राम की पावर 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, एक किसी एक को तोड़ लेंगे, यहां तो कट गया, 1 की पावर -2, कितना आ गया ये 1000 इंटू 100 इंटू 1, कितना आ गया 10 की पावर 5। सो N1 U1 इक्वल टू होता है N2 U2, N1 कितना है 1, U1 कितना है न्यूटन, इक्वल टू N2 कितना है 10 की पावर 5, ये कितना है टाइम। सो दैट मीन्स 1 in Newton is equal to 10 to the power 5 टाइम। सो दिस इज द वेरी इंपोर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान सा क्वेश्चन है। आप किसी भी क्वेश्चन की बैठेंगे, आप ध्यान रखिएगा, आप जिस सिस्टम से जा रहे हैं वो M1 L1 T1 वाला होगा, जहां जाएंगे वो M2 L2 T2 होगा, वो MKS भी हो सकता है, CGS भी, फुट पाउंड भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, जो भी होगा आपको। और ABC आपने कैसे निकालने हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू से। इज इट क्लियर? सो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। नाउ अब बात करते हैं सेकेंड एप्लीकेशन। सेकेंड आप क्या कर सकते हैं, बाय डायमेंशनल फॉर्मूला, बाय डायमेंशनल फॉर्मूला वी कैन चेक गिवन इक्वेशन। बाय डायमेंशनल फॉर्मूला वी कैन चेक द गिवन इक्वेशन। डायमेंशनल फॉर्मूला की हेल्प से हम इक्वेशन को चेक कर सकते हैं कि इज दिस इक्वेशन इज करेक्ट और रॉन्ग, ये इक्वेशन करेक्ट है या फिर रॉन्ग है, ये कैसे चेक किया जा सकता है, बाय डायमेंशनल फॉर्मूला। एदर द गिवन इक्वेशन इज, बाय डायमेंशनल फॉर्मूला वी कैन चेक वेदर द इक्वेशन इज करेक्ट और रॉन्ग, गलत है या सही है। नाउ इफ इक्वेशन इज करेक्ट, अगर इक्वेशन, कोई इक्वेशन सही हुई डायमेंशनली, अगर वो इक्वेशन सही है तो क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS, लेफ्ट हैंड साइड जो होना चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ RHS होना चाहिए। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS किसके इक्वल होना चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ RHS। अगर वो इक्वेशन सही है तो उस इक्वेशन में, कोई भी इक्वेशन,
any equation whatever given to you, if any equation is given to you and if the equation is correct, that means उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला LHS का होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड का होना चाहिए, वो इक्वल टू के उस साइड भी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। नंबर सेकंड, इफ इक्वेशन इज रॉन्ग, अगर इक्वेशन गलत है तो क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS जो होगा इज नॉट इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ RHS। जो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS होगा वो डायमेंशनल फॉर्मूला RHS के इक्वल नहीं होगा। अगर वो इक्वेशन गलत है तो ये इक्वल नहीं होंगे, अगर वो सही है तो वो ये इक्वल होंगे। चलिए चेक कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको पता चल जाएगा किस तरह से करना है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन चेक गिवन इक्वेशन बाय डायमेंशनल फॉर्मूला P इक्वल टू MV, P इक्वल टू MV, या फिर ये कर लेते हैं चेक द गिवन इक्वेशन बाय डायमेंशनल फॉर्मूला F इक्वल टू PV। कुछ अलग सा देते हैं जो आपको पता नहीं। हियर F देगा वो आपको, F क्या है, F फोर्स है, P जो है P है पावर, और V जो है वो है वेलोसिटी। इट विल बी गिवन, ये दिया होगा कि जो सिंबल है इक्वेशंस में वो क्या है, विच फिजिकल क्वांटिटी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट। तो हमने चेक करना है वेदर दिस इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। तो हमने चेक करना है कि क्या फोर्स इक्वल टू पावर इनटू वेलोसिटी होता है। हमने चेक करना है कि क्या फोर्स इक्वल टू पावर इनटू वेलोसिटी होता है। चेक कर लेते हैं कौन से मेथड से करना है, बाय डायमेंशनल। तो हम क्या करेंगे, हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, फोर्स F, F क्या है, फोर्स। तोड़ देंगे, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। मास फंडामेंटल हो गया, एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन फंडामेंटल नहीं है। वेलोसिटी अपॉन टाइम, मास फंडामेंटल हो गया, वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ये मैंने अभी बताया आपको, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखेंगे तो टाइम का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। एक ऑलरेडी है वहां पर टाइम, वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो कितना हो गया ये, इसको डायमेंशन में लिखेंगे तो m1 डिस्प्लेसमेंट L1, L हो जाएगा टाइम t -2, ऊपर जाएगा -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला LHS। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर, ये आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS। क्या आ रहा है, m1 आ रहा है, L की पावर 1 आ रही है, t की पावर -2 आ रही है। अगर ये इक्वेशन सही है तो राइट साइड में इन दोनों का भी यही आना चाहिए, दोनों मल्टीप्लाई करके यही आना चाहिए। चेक कर लेते हैं, चलिए अब निकालते हैं क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ RHS। RHS निकालते हैं। RHS में क्या है, P इंटू V। P क्या है, पावर, अपॉन V है वेलोसिटी। पावर क्या होती है, पावर बोलते हैं वर्क अपॉन टाइम को पावर बोलते हैं, इंटू वेलोसिटी हो गई हमारी क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब ये तो फंडामेंटल है, ये भी फंडामेंटल है, ये भी वर्क फंडामेंटल यूनिट नहीं है, वर्क को तोड़ना पड़ेगा। क्या होता है वर्क, वर्क इक्वल टू होता है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, होता है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन फंडामेंटल नहीं है, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटू डिस्प्लेसमेंट। हुआ, तो मास, वेलोसिटी फंडामेंटल नहीं है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर हो जाएगा इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो कितना आ गया, वर्क का आ गया m1 L2 t -2, लेंथ L इंटू L2। तो इसकी जगह पर रख देंगे m1 L2 t -2, डिस्प्लेसमेंट हो गया L, अपॉन टाइम हो गया, टाइम कितना हुआ आपका, t और t, ये तो हुआ t इंटू t। अभी कितना आ रहा, m1 L की पावर 3, 2 यह है, 1 यह है, 3, t की पावर -2 यह है, t की पावर नीचे से 2 गया, कितना आ गया, m1 L3 t की पावर -4 आ रहा है। सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS नॉट इक्वल टू RHS।
डायमेंशन फॉर्मूला LHS और RHS इक्वल नहीं है। LHS का M1 L1 T-2 है और RHS का ये आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है? रॉन्ग। गिवन इक्वेशन इज रॉन्ग। दी गई इक्वेशन क्या है? गलत है। अगर ये इक्वल आ जाते तो दी हुई इक्वेशन क्या होती? सही होती। इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है? गलत है। सो हम इसका यूज कर सकते हैं बाय चेकिंग इन चेकिंग द इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन का आप डायमेंशन से चेक कर सकते हैं वेदर द गिवन इक्वेशन इज करेक्ट और रॉन्ग। किस तरह का क्वेश्चन भी होता है इसमें? L plus L equal to L minus L. Check the equation by dimensional. Check equation by dimensional method. डायमेंशनल मेथड से इक्वेशन को चेक कीजिए। चेक द इक्वेशन बाय डायमेंशनल मेथड। नाउ अब देखिए ध्यान से, कई बच्चे कह रहे होंगे सर L plus L to 2L और L minus L 0, ये तो गलत है। ये कैसे गलत है? मैथमेटिकली गलत है। मैथमेटिकली इक्वेशन क्या है? गलत है। बिकॉज लेफ्ट में आ रहा 2L, राइट में आ रहा 0। तो लेकिन उसने चेक करने को कौन सी मेथड से बोला? उसने बोला डायमेंशनली चेक करो। डायमेंशनली चेक करने का मेथड क्या होता है? डायमेंशनली चेक करने में होता है कि लेफ्ट साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला राइट साइड के इक्वल आ जाना चाहिए। लेफ्ट में जितने भी कंपोनेंट है उनका डायमेंशनल फॉर्मूला राइट में जितने भी कंपोनेंट है उनके डायमेंशनल फॉर्मूला के इक्वल आना चाहिए। तो चेक करते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS निकालेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं क्या है? L plus L। L क्या लेंथ है? तो हो गया M0 L1 T0 प्लस ये भी हो गया M0 L1 T0। लेंथ ही तो है इसमें, बस बाकी कुछ है नहीं। ये तो दोनों का सेम आ रहा, बिल्कुल सही है। अब निकालते हैं क्या? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ RHS चेक करते हैं। L माइनस L कितना आया? M0 L1 T0 माइनस M0 L1 T0। डायमेंशन माइनस होते नहीं है क्योंकि वो मैथमेटिकल रूल थोड़ा फॉलो करते हैं। देखिए तो LHS के सारे टर्म और RHS के सारे टर्म, इसका 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 सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। दैट मींस डायमेंशनल फॉर्मूला बाय डायमेंशनल फॉर्मूला गिवन इक्वेशन इज करेक्ट। डायमेंशनल मेथड से दी हुई इक्वेशन क्या है? सही है। बिकॉज सबका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ रहा है? सारे टर्म्स का सेम आ रहा है। बीच में प्लस माइनस हो तो इंडिविजुअल निकालेंगे, मल्टीप्लाई में हो तो साथ में निकाल। जैसे L क्रॉस L L स्क्वायर का निकालेंगे, लेकिन L प्लस L 2L का नहीं निकालेंगे। L और L इंडिविजुअल देख लेंगे, अलग अलग देख लेंगे। ठीक है, तो सबका डायमेंशनल फॉर्मूला। मैथमेटिकली ये इक्वेशन क्या है? गलत है। मैथमेटिक्स में ऐसे नहीं हो सकते, लेकिन फिजिक्स के डायमेंशनल फॉर्मूले के हिसाब से दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। सो किसी भी इक्वेशन को आप डायमेंशनली चेक कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल टू होना चाहिए राइट हैंड साइड का। क्लियर? लेफ्ट हैंड में जितने भी टर्म्स हैं सबका डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल टू राइट हैंड में जितने भी टर्म है सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। मल्टीप्लाई में है तो साथ में उन्हें एक साथ निकालेंगे, और अगर प्लस और माइनस में है तो इंडिविजुअल निकालेंगे। सबका डायमेंशनल फॉर्मूला अलग अलग चेक करेंगे प्लस और माइनस के केस में। अगर दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में प्लस आ गया तो उसका अलग चेक करेंगे, उसका अलग। मल्टीप्लाई में है तो निकाल के दोनों को साथ में कर लेंगे। क्लियर? और डिवाइडेशन में भी साथ में कर लेंगे। सो दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला। नाउ earlier I have discussed you that there are from physical quantity कुछ क्वेश्चन इस तरह का होता है। Find dimensional formula of x। Find dimensional formula of x। किसका डायमेंशनल फॉर्मूला? x का निकालना है। इन फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला k, मान लीजिए फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला k इन 10kx। 10kx में डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है किसका? k का। अब आपको पता है 10 cos sin कैसी क्वांटिटी है? दीज आर द फिजिकल क्वांटिटी विच आर डायमेंशनल लेस कांस्टेंट, डायमेंशनल लेस वेरिएबल। इनकी वैल्यू तो वेरी करेगी, वैल्यू क्या होगी? वेरिएबल होगी, लेकिन इनका कोई भी डायमेंशनल नहीं होगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनकी कोई यूनिट ही नहीं होती। tan थीटा की कोई यूनिट नहीं है, थीटा इज द एंगल, तो इनका कोई डायमेंशन भी नहीं होगा। इसका मतलब हुआ मैं ये कह सकता हूं कि tan थीटा इक्वल टू होना चाहिए M0 L0 T0। कुछ भी नहीं होना चाहिए क्योंकि उनका डायमेंशन फॉर्मूला ही नहीं होता। भाई 10 वाले कंपोनेंट का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, नहीं होता मतलब M भी 0 होगा, L भी 0 होगा, T भी 0 होगा। अब यहां पर क्या दिया है? थीटा की जगह kx, सो kx भी होना चाहिए कितना? M0 L0 T0। सो kx कितना होगा? M0 L0 T0 हुआ, तो k कितना होगा?
m0 l0 t0 अपॉन x। लेट x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, x क्या है डिस्प्लेसमेंट, कितना आ जाएगा m0 l0 t0 अपॉन डिस्प्लेसमेंट के लिए l 1 हो गया, ऊपर चला गया, कितना आ गया m0 l हो जाएगा -1, ऊपर चला गया -1 t0। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आईआईटी में आया हुआ या इंजीनियरिंग पेपर्स में कॉम्पिटिटिव एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 10 कुछ वेरिएबल ऐसे होते हैं जो वेरिएबल होते हैं लेकिन उनका डायमेंशन नहीं होता, जैसे ये, तो इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता। कुछ इस तरह का क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। तो दो एप्लीकेशन हमने पढ़ी। बाय डायमेंशन फॉर्म मेथड वी कैन convert one system to another. By dimension form method we can check the equation, yes or no. Now there are many applications, rest we will discuss in next lecture. तब तक के लिए read it, stay home and stay safe. फिर मिलूंगा इसी डायमेंशनल टॉपिक के साथ, अगली एप्लीकेशंस को देखेंगे कि क्या कुछ हम कर सकते हैं बाय डायमेंशनल मेथड। तब तक के लिए बाय।